নমস্কাৰ। সো আজি মাইক্ৰো ইকনমিক্সৰ ক্লাছ 11ৰ ভোক্তাৰ আচৰণ বা কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ চেপ্টাৰটোলৈ আমি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ। অ'কে, সো লাষ্ট ক্লাছলৈকে আমি নিৰপেক্ষ ৰেখাৰ গোটেই কনচেপ্টখিনি ডিছকাশ্যন কৰিছিলোঁ। ক্লিয়াৰ? সো নিৰপেক্ষ ৰেখা বা ইনডিফাৰেঞ্চ কাৰ্ভছ কনচেপ্টৰ লগত জড়িত কথাবিলাক আমি অলৰেডি ডিছকাশ্যন আমাৰ হ'ল। ক্লিয়াৰ? So indifference curve simply we refers to combinations of two goods from which consumer gets same level of satisfaction. Okay, मैं बोलना चाहता हूँ लास्ट क्लास तक हम लोग ने कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर में इंडिफरेंस कर्व्स रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट था वो डिस्कशन किया। क्लियर? लेकिन एक बात था जो हम लोग बार बार बोलता है ना, कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस बंडल्स ऑफ टू गुड्स फ्रॉम व्हिच कंज्यूमर गेट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। तो अभी क्वेश्चन है, ये जो कंज्यूमर टू गुड्स का जो वेरियस बंडल्स वो कंज्यूम कर रहा है ना, जिससे उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो वो तो वेरियस बंडल्स और कॉम्बिनेशन उसको परचेज करना पड़ा। क्लियर? मतलब अभी तक हम लोग सेटिस्फैक्शन वाला बात में था, सेटिस्फैक्शन वाला कंसेप्ट में था, लेकिन हम लोग को ये चीज़ भी पता है वो सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए वो कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को डेफिनेटली परचेज करना पड़ेगा। क्लियर? मैं कब विचारिছোঁ निरपेक्ष रेखार লগত জড়িত ভোক্তা এজনে দুটা দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন জুট উপভোগ কৰি পেলাই সমপৰিমাণ সন্তুষ্টি লাভ কৰে, কিন্তু সেই দুটা দ্ৰব্যৰ যে বিভিন্ন জুট তেওঁ পাই আছে, মিন্স তাৰ পৰা যে সন্তুষ্টি লাভ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে সেই বিভিন্ন জুটবিলাকৰ যিটো দ্ৰব্য দুটাৰ জুট বুলি কৈ আছোঁ, সেই জুটখিনিতেও পাৰ্চেজ বা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লাগিব। ক্লিয়াৰ? ডেট মিন্স সেই ডিফাৰেণ্ট যিবিলাক কম্বিনেশ্যন সেইখিনি তেওঁ পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব লাগিব। মই আজিৰ টপিকটো সেইকাৰণে কৈ আছোঁ, পাৰ্চেজ বুলি শব্দটো কৈ আছোঁ, ক্ৰয় কৰিব পাৰিব লাগিব কথাটো কৈ আছোঁ। ডেট মিন্স টুডে উই স্পেচিয়েলি ডিছকাছ হোৱাট সেকেণ্ড পাৰ্ট অফ দ্য কনজিউমাৰ বিহেভিয়াৰ আণ্ডাৰ অৰ্ডিনেল ইউটিলিটি এনালাইচিছ। অ'কে, দিছ ইজ ৰিলেটেড টু বাজেট কনচেপ্ট। অ'কে, মিন্স ভোক্তা এজনে তেওঁ বিভিন্ন দ্ৰব্যৰ জুটবিলাকত কেনেকৈ টকাখিনি খৰচ কৰে, দ্ৰব্যৰ দৰৰ লগত জড়িত আৰু সেই কনজিউমাৰজনৰ ইনকামৰ লগত জড়িত। ক্লিয়াৰ? চ' টুডে স্পেচিয়েলি উই ডিছকাছ বাজেট লাইন অৰ বাজেট ইকুৱেশ্যন। ক্লিয়াৰ? তাৰ লগে লগে আৰু এটা কনচেপ্টটো ডিছকাশ্যন কৰিম, বাজেট কনষ্ট্ৰেণ্ট। ক্লিয়াৰ? অ'কে, তেতিয়াহ'লে ব'লা ডিছকাশ্যন কৰোঁ। So budget constraint and budget line or budget equation. Okay, the question হল budget constraint or budget line concept খিনি overall আমি বুজিম, কিন্তু তাৰ প্ৰথমে তুমি জানিব লাগিব what is budget line. Okay, মই short মানে নোটেশনত ক'ব পাৰে বা একদম সিম্পলকৈ লিখি থৈছোঁ, বাজেট লাইন হৈছে all possible combinations বা all possible combinations what purchased শব্দটো লিখিছোঁ। ক্লিয়াৰ? মিন্স কনজিউমাৰজনে পচিবল কম্বিনেশ্যনখিনি পাৰ্চেজ কৰিব লাগিব উইথ গিভেন ইনকাম। অ'কে, মিন্স কনজিউমাৰজনৰ হাতত যিখিনি ইনকাম আছে বা টকা আছে বা বাজেট যিখিনি আছে সেইখিনি তেওঁ গোটেইকেইটা কম্বিনেশ্যন পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব লাগিব। ক্লিয়াৰ? हर आदमी का एक बजट होता है ना, है ना, मुझे इतना बजट ये चीज़ में खर्चा करना है, मतलब ये चीज़ में स्पेंड करना है। तो इधर तुम मान लो तुम्हारे हाथ में 2 गुड्स है, वो 2 गुड्स में तुम्हारा बजट स्पेंड करोगे। क्लियर? तो वो जो बजट स्पेंड करोगे, मतलब आई मीन टू से बजट मतलब इनकम स्पेंड करोगे, और जिस जगह पर स्पेंड करोगे उस जगह पर तुम्हारा इनकम इज इक्वल टू कॉस्ट होगा। मतलब जितना तुम्हारा बजट उतना ही तुम्हारा बजट स्पेंड होगा। मतलब बजट लाइन रिप्रेजेंट वेरियस लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ टू डिफरेंट गुड्स ऑन व्हिच कंज्यूमर कैन परचेज व्हिच इज ऑल्सो इक्वल टू हिज इनकम। मतलब कंज्यूमर का जितना 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन में खर्चा हो रहा है ना, वह खर्चा उसका इनकम के साथ समान होगा। मतलब मान लो तुम्हारे हाथ में 100 रुपया है, तो 100 रुपया में तुम डिफरेंट बंडल खरीद सकते हो, ठीक है, लेकिन वही 100 रुपया तुम्हारा खर्चा भी हो जाएगा। मतलब इनकम था 100, एक्सपेंडिचर भी कितना 100। क्लियर? मतलब बजट लाइन में तुम्हारे हाथ में जितना इनकम था वही तुम्हारा
कॉस्ट है, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा बजट लाइन में। सो मैंने लिखा ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस परचेज, मतलब जितना तुम्हारे पास कॉम्बिनेशंस है टू गुड्स का मीन्स बंडल है वो तुम परचेज कर सकोगे विद गिवन इनकम, मतलब तुम्हारे पास जितना इनकम था वही से, लेकिन जब जितना इनकम ही है वही सारा खर्चा हो जाएगा। मतलब 50 रुपीज़ था तो 50 खर्चा होगा, 100 था तो 100 खर्चा होगा, 100 रुपया मतलब 500 रुपया था तो 500 ही खर्चा होगा। क्लियर? मतलब व्हाट एवर इनकम इन योर हैंड दैट इनकम डेफिनेटली यू स्पेंड against budget line. Clear? So budget line represents various combinations of two goods which can purchased by the consumer, okay, with given money income. That money income also equals to his or her cost. Okay, मतलब cost जितना होगा उतना ही उसका इनकम होगा, 1 रुपया भी बचेगा नहीं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज बजट सेट। तो बजट लाइन और बजट सेट में एक डिफरेंट ये है, इसमें मैंने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखा जो वो परचेज कर सकता है विद गिवन इनकम, जहाँ पर उसका कॉस्ट एंड इनकम इक्वल होगा। लेकिन इधर मैंने लिखा ऑल अवेलेबल कॉम्बिनेशन, ऑल अवेलेबल कॉम्बिनेशन मतलब उसके हाथ में जितना अवेलेबल कॉम्बिनेशन है। क्लियर? मतलब मैं অসমীয়া তো কৈ দিছোঁ তাৰ মানে ভোক্তাজনৰ হাতত যিমানখিনি সম্ভাৱনা থকা জুট আছে, তাৰমানে সেই সম্ভাৱনা থকা জুট মই সেইকাৰণেই কৈছোঁ সেই জুটবিলাকত তেওঁৰ গোটেই বাজেট খৰচ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। ধৰি লোৱা তোমাৰ হাতত বাজেট আছে, ইনকাম যিটো আছে মিন্স বাজেট যিটো আছে 100 টকা, হয়তো সেই জুটবিলাকত তোমাৰ 100 টকাও খৰচ হ'ব পাৰে, হয়তো 80 টকাও খৰচ হ'ব পাৰে, হয়তো 70 টকাও খৰচ হ'ব পাৰে, ম্যাক্সিমাম 100 খৰচ হ'ব পাৰে, মিনিমাম 10 रुपीसও খৰচ হ'ব পাৰে, 1 रुपीसও খৰচ হ'ব পাৰে। দ্যাট ডিপেন্ডস অন দ্য প্ৰাইচ অফ টু গুডছ। ক্লিয়াৰ? দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছোঁ বাজেট সেট নাথিং বাট অল এভেইলেবল কম্বিনেশ্যনছ। ক্লিয়াৰ? য'ত কনজিউমাৰ এফৰ্ড কৰিব পাৰে, কনজিউমাৰে এফৰ্ড কৰিব পাৰে বাট নট নেচেচাৰিলি ইকুৱেল কষ্ট এণ্ড ইনকাম। তাৰমানে ইনকাম আৰু কষ্ট এই দুটা সমান নহ'বও পাৰে, সমান হ'বও পাৰে। ক্লিয়াৰ? তাৰমানে এইটোও হ'ব পাৰে, এইটোও হ'ব পাৰে। ক্লিয়াৰ? দ্যাট মিন্স ইনকাম যিমান সেইখিনি খৰচ হ'বও পাৰে, ইনকাম যিমান সেইখিনি খৰচ নহ'বও পাৰে। ক্লিয়াৰ? মিন্স বাজেট লাইনত গোটেইখিনি বাজেটৰ ইনকাম স্পেণ্ড হ'ব, বাট বাজেট ছেটত গোটেইখিনি বাজেটৰ ইনকাম স্পেণ্ড হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। ক্লিয়াৰ? সেইকাৰণে অল পচিবল কম্বিনেশ্যন পাৰচেজ উইথ গিভেন ইনকাম ৱেৰ কষ্ট ইজ ইকুৱেল টু ইনকাম मैंने लिखा, लेकिन इधर मैंने लिखा ऑल अवेलेबल कॉम्बिनेशंस कंज्यूमर कैन अफोर्ड। ओके, अफोर्ड बात मैंने लिखा, ओके, बट नॉट नेसेसरीली इक्वल टू कॉस्ट एंड इनकम। क्लियर? एंड दैट बजट लाइन related to budget equation and budget set related to budget constant। क्लियर? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ ये चीज़ जो बजट लाइन है ना, ये बजट लाइन बजट इक्वेशन के साथ रिलेट है। क्लियर? मतलब ये चीज़ बहुत स्टूडेंट को पता नहीं, बजट लाइन जो होता है ना, जो बजट लाइन उसके साथ रिलेट हो गया, उसके साथ रिलेट हो गया बजट इक्वेशन। क्लियर? सो बजट इक्वेशन। और जो मैंने बजट सेट वाला बात लिखा ना, अवेलेबल जो कॉम्बिनेशन था जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, वो बजट सेट के साथ बजट ये कॉन्स्टेंट वाला बात आ जाएगा। ठीक है? मतलब बजट सेट रिलेटेड टू बजट कॉन्स्टेंट और बजट कॉन्स्टेंट रिलेटेड टू बजट सेट। ओके, but budget line related to budget equation means budget equation related to budget line। ओके, मतलब बजट लाइन के साथ बजट इक्वेशन का रिलेशन है, मतलब बजट लाइन नथिंग बट बजट इक्वेशन एंड बजट कॉन्स्टेंट नथिंग बट बोल सकते हो बजट सेट। क्लियर हल? क्वेश्चन हल तुम्हार हाथत যদি বাজেট ইকুৱেশ্যনটো আছে, সেই বাজেট ইকুৱেশ্যনটো কেনেকৈ লিখিব পাৰি। বাজেট ইকুৱেশ্যনটো লিখিবৰ কাৰণে বাজেটৰ যিটো ইকুৱেশ্যন, বাজেটৰ কি ইকুৱেশ্যন। ক্লিয়াৰ? সো বাজেটৰ ইকুৱেশ্যনটো হৈছে তুমি এইটো লিখিব পাৰা, বাজেটৰ ইকুৱেশ্যন হৈছে m = x/px + y/py। ক্লিয়াৰ? x means good x, px nothing but price of good x, y means good y, py means price of good y, and m means nothing but
M मीन्स नथिंग बट बजट ऑफ द कंज्यूमर। क्लियर हो गया। अभी मान लो ये सिचुएशन में X तुम खरीद रहे हो, X खरीद रहे हो 10 यूनिट्स, X का प्राइस पकड़ लो 2, मतलब Px इज इक्वल टू 2, सो 2 लिख दिया। और Y तुम खरीद रहे हो सपोज 20 यूनिट्स, Y का प्राइस पकड़ लो 1 पर यूनिट 1, तो ये हो जाएगा 1, ये 2। तो फाइनली अगर X तुम 10 यूनिट्स खरीद रहे हो, प्राइस अगर पर यूनिट का 2 है, तो तुम्हारा X का टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा 20 रुपीज़। और इधर पर यूनिट का प्राइस 1, तो 20 यूनिट खरीद रहे हो, तो फाइनली तुम्हारा 20 खर्चा होगा। तो X में खर्चा होगा 20, Y में 20, फाइनली 40 रुपीज़ खर्चा होगा। एंड दैट कॉस्ट इज इक्वल टू योर बजट, मतलब तुम्हारा हाथ में बजट 40 था, वही 40 स्पेंड हो गया। मतलब हाथ में तुम्हारा बजट था 40 और 40 राइट साइड में स्पेंड हो गया। क्लियर, मतलब इनकम इज इक्वल टू कॉस्ट। ओके, सो बजट इक्वेशन रिप्रेजेंट व्हाट, कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम। क्लियर, दैट मीन्स मैं बोलना चाहता हूँ ये जो चीज़ है ना, इतना जो चीज़ है वही नथिंग बट हो गया कॉस्ट। एंड दैट कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, दैट कॉस्ट नथिंग बट इनकम। M मीन्स इनकम मीन्स बजट ऑफ द कंज्यूमर, एंड दैट इज नथिंग बट हाउ मच स्पेंड ऑन गुड X एंड हाउ मच स्पेंड ऑन गुड Y, एंड सम टोटल ऑफ दिस नथिंग बट टोटल कॉस्ट, एंड दैट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू इनकम। बीच में इक्वल साइन है ना, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। क्लियर, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड ओनली बजट लाइन। ओके, good. Next, what is budget constant? And budget constant nothing but what? Constant nothing but limit, मतलब एक लिमिट तक तुम स्पेंड कर सकते हो। क्लियर, मतलब उससे ज़्यादा तुम स्पेंड नहीं कर सकते हो। क्लियर, तो वो चीज़ होगा बजट कॉन्स्टेंट वाला चीज़ होगा बजट व्हाट कॉन्स्टेंट, बजट व्हाट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट को इस हिसाब से लिखता है X Px प्लस Y Py लेस देन इक्वल M। मतलब इसमें इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब जितना तुम्हारा खर्चा, मतलब जितना तुम्हारा कॉस्ट, वो लेस देन इक्वल योर व्हाट इनकम। मतलब हो सकता है तुम्हारा इनकम 50, खर्चा भी हो सकता है 50, हो सकता है इनकम तुम्हारा 50, खर्चा हो सकता है 30, ये भी हो सकता है। मतलब जितना इनकम उतना ही खर्चा हुआ, जितना इनकम उतना खर्चा नहीं भी हो सकता है। क्लियर, इसलिए शायद मैंने लेस देन इक्वल साइन डाला। ये जो इक्वेशन हाथ में आया ना, दिस इज नथिंग बट व्हाट बजट कांस्टेंट। मतलब बजट इक्वेशन में ऑलवेज इक्वल साइन आएगा, मतलब M इज इक्वल X Px प्लस Y Py, एंड कांस्टेंट में लेस देन इक्वल साइन आएगा। क्लियर, तो ये दो कॉन्सेप्ट में अगर तुम देखो तो उस हिसाब से तुम बजट लाइन भी बना सकते हो। क्लियर, बाय फॉलोइंग द बजट इक्वेशन। क्लियर, सो बजट लाइन अगर तुम बनाओगे ना तो इस हिसाब से बनाओ। तो इधर X हो गया, इधर Y हो गया, इधर तुम लिख दो गुड X, इधर हो गया गुड Y। क्लियर, अभी मान लो मार्केट में X का प्राइस पकड़ लो, एक तो प्राइस 5 से लिख देता हूँ। ओके, से Py पकड़ लो 2। क्लियर, अभी मान लो अगर X तुम्हारा हाथ में, मान लो तुम्हारे हाथ में बजट था, कितना बजट था, सपोज 40 रुपीज़। क्लियर, मीन्स योर बजट इज 40 रुपीज़, प्राइस ऑफ गुड Y is 2 and price of good X is per unit 5। ओके, इन दैट सिचुएशन अगर ये डेटा तुम्हारे पास है ना, तो इस हिसाब से तुम बजट लाइन कैसे ड्रॉ करोगे। क्लियर, तो बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए तुम दो चीज़ को फॉलो करो। क्लियर, वो दो चीज़ क्या है, एक चीज़ हो गया तुम ये चीज़ निकाल लो M/Px, ये एक तो चीज़ निकाल लो, और एक तो चीज़ निकाल लो M/Py। क्लियर, M/Px मतलब 40 बाई Px 5 था, तो निकल जाएगा कितना 8। इधर कर लो तुम 40/2 ना, 2, तो इधर निकल जाएगा कितना 20।
Clear? So this 8 is nothing but only X, means consumer spend his whole budget on good X, मतलब सारा 40 रुपया X में चला जाएगा तो Y नहीं खरीद सकेगा, लेकिन अगर Y खरीदेगा तो Y 20 यूनिट्स खरीद सकेगा, तब X नहीं खरीद सकेगा। इसलिए शायद मैंने बोला 8 नथिंग बट ओनली X एंड 20 नथिंग बट ओनली Y। ओके, सो दिस इज ओनली X, दिस इज ओनली Y। क्लियर? सो इस हिसाब से तुम m/px करके ओनली x निकाल लो, m/pi करके ओनली y निकाल लो। क्लियर? ये जो डेटा है ना, इससे मैं कब বিচাৰিছো তোমাৰ হাতত বাজেটটো যদি থাকে, দ্ৰব্য দুটাৰ দৰ থাকে, তেতিয়ালে তুমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিবা, m/px কৰি কেৱল x ওলাবা, m/py কৰি কেৱল y ওলাবা। ক্লিয়াৰ? আৰু এই যে 20 আৰু 8 যে দুটা ওলাল, তুমি স্কেলেৰে মেজাৰমেন্ট লৈ লবা, এফালে সাপোজ 20 মেজাৰমেন্টটো লবা y ৰ, আৰু তলফালে x ৰ মেজাৰমেন্টটো 8 লবা। ক্লিয়াৰ? সো এই মেজাৰমেন্টটো যেতিয়া লৈ লবা, দিস ইজ 8, দিস ইজ 20। ওকে, y টু 20 আৰু এইটো 8, এই দুটা তুমি একেলগে এনেকা লগাই দিয়া। ক্লিয়ার? এনেকা যদি লগাই দিয়া তেতিয়াহলে তোমাৰ ওলাই যাব কি, বাজেট লাইন। ক্লিয়ার? আৰু এই বাজেট লাইন কনসেপ্টত তুমি যে দুটা এরিয়া ওলালা, সেই দুটা এরিয়াৰ মানেটো হৈছে কি, এই মোৰটো তুমি ওলালা m/py কৰি, এই মোৰটো তুমি ওলালা m/px কৰি। Means m/py is nothing but only y, m/px nothing but only x, and these two nothing but the intercept of the budget line। मतलब budget line का 2 intercept होता है, एक हो गया m/py, एक हो गया m/px। क्लियर? सो इस हिसाब से बजेट लाइन को ड्र करो। क्लियर? मैं कब বিচাৰিছো এডাল বাজেট ৰেখা তুমি যেতিয়া ড্ৰ কৰিবা, তেতিয়া তুমি সদায় y এক্সিসৰ m/py ওলাবা, x এক্সিসৰ m/px ওলাবা। ক্লিয়ার? সো এই দুটা মূৰ ওলাই লবা, ওলাই প্লাস স্কেলেৰে জয়েন কৰি দিবা, বাজেট লাইন হৈ যাব। ক্লিয়ার? 100% ৰাইট ওলাব। ক্লিয়ার? সো সেইকাৰণে প্ৰথম এইটো আৰু এইটো ওলাই লবা m/py m/px কৰি। এতিয়া কুৱেশ্যন হল, এই যে বাজেট লাইনৰ এই যে গোটেই যেটো এৰিয়া এই এভেইলেবল, ওকে, দিজ আর অল এভেইলেবল বান্ডল এই লাইনতো। ওকে, সো দিজ available bundle are what feasible combination. Okay, what combination? All are all feasible combinations, all feasible what combinations which consumer can buy। তার মানে এই বাজেট লাইনৰ ভিতৰত যিমানটা তুমি জুট পাবা, আৰু লাইনতো লাইনৰ কম্বিনেশনস বিলাক আৰু লাইনৰ ভিতৰৰ কম্বিনেশন বিলাক, ওকে, সব জুট বিলাক মিলাই পেলাই একেলগে কোৱা হয় এভেইলেবল কম্বিনেশনস অর এভেইলেবল বান্ডল। ক্লিয়ার? আৰু এই গোটেইখিনি জুটক এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ, ওকে, এই ট্ৰায়াঙ্গলটোৰ ভিতৰৰ গোটেইখিনি জুট যিমান জুট আছে লাইনতো আৰু লাইনৰ ভিতৰত, এই গোটেইখিনি জুটক একেলগে কোৱা হয় বাজেট সেট, and that budget set related to budget what constraint, budget what constraint। Clear? So budget constraint or budget set or concept of all available bundle which consumer can afford। Okay, means consumer জনৰ গোটেই বাজেট স্পেন্ড হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে। যদি তেওঁ লাইনত যদি কম্বিনেশনটো প্ৰেফাৰ কৰে, তেতিয়ালে তেওঁৰ বাজেট গোটেইটো স্পেন্ড হ'ব, আৰু লাইনৰ ভিতৰত ইনসাইড দা বাজেট লাইন যদি তেওঁ স্পেন্ড কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই এমাউণ্টটো বাজেটতকৈ কম হ'ব। মানে যিটো কম্বিনেশ্যনে তেওঁ লাইনৰ ভিতৰত চুজ কৰিব, তাত তেওঁৰ বাজেটতকৈ কম খৰচ হ'ব, বাট লাইনত তেওঁৰ যিমান বাজেট আছিল সিমানে খৰচ হ'ব। ক্লিয়াৰ? এতিয়া কুৱেশ্যন হ'ল, এইটো গ'ল গোটেই এভেইলেবল কম্বিনেশ্যন। তাৰ মানে এনেকৈ বুজি লোৱা এ পইণ্ট বি পইণ্ট, মানে এ কম্বিনেশ্যন বি কম্বিনেশ্যন, এটা ইয়াতো লৈ লোৱা চি কম্বিনেশ্যন, এইটো চি কম্বিনেশ্যন, মিন্স এ বি চি ডট 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 all are budget set। ক্লিয়ার? তার মানে লাইনত যিমান তুমি জুট পাবা, লাইনৰ ভিতৰত যিমান তুমি জুট পাবা, গোটেইখিনি এভেইলেবল বান্ডল which can afford by the consumer, and this is nothing but budget set, and budget set related to budget constraint।
ক্লিয়াৰ গ'ল দিয়া বাট বাজেট ইকুৱেশ্যন বুলি যেতিয়া তুমি ক'বা বাজেট ইকুৱেশ্যন কোৱাৰ লগে লগে অনলি তুমি লাইনক ফ'ল' কৰিবা এই লাইনক তাৰ মানে এ পইণ্ট বি পইণ্ট ডি পইণ্ট অ'কে মিনছ এ বি and D all are nothing but key related to budget line. If it is related to budget line, then definitely we follow this budget equation. তার মানে যিমান তোমার কস্ট সিমানে তোমার ইনকাম ক্লিয়ার তার মানে লাইনত সদায় যিমান ইনকাম হয় সিমানে খৰচ হয় তার মানে এই লাইনডালৰ তুমি যিকোনো কম্বিনেশ্যনে নোলোৱা কিয় ক্লিয়াৰ সবতে তোমাৰ যিমান বাজেট সিমানে স্পেন্ড হ'ব ক্লিয়াৰ কিন্তু কনষ্টেণ্টত সিমান খৰচ হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে যদি তুমি লাইনত পাৰচেজ কৰিছা তেতিয়াহ'লে গোটেই বাজেট স্পেন্ড হ'ব লাইনৰ ভিতৰত যদি কৰিছা তেতিয়াহ'লে कम टका खर्च होगा मैं बोलना चाहता हूँ अगर लाइन में तुम कॉम्बिनेशन चूज़ कर रहे हो तो तुम्हारा जितना बजट था वही स्पेंड होगा अगर बजट लाइन के अंदर तुम कोई पॉइंट ले रहे हो कॉम्बिनेशन तो बजट जितना था उससे कम खर्चा होगा मतलब अवेलेबल बंडल में तुम्हारा इनकम नॉट इक्वल टू कॉस्ट भी हो सकते हैं इनकम इक्वल टू भी कॉस्ट हो सकते हैं वो सारा मिला के मतलब जो अवेलेबल बंडल सारा मिला के विद इन दिस ट्रायंगल ओके वो हो गया बजट सेट एंड दैट बजट सेट रिलेटेड टू बजट कॉन्स्टेंट क्लियर बट बजट लाइन रिलेटेड टू ओके बजट इक्वेशन और जहाँ तुम्हारा जितना बजट था वही स्पेंड होगा मतलब सारा पॉइंट लाइन में होगा तो ये अंदर जितना कॉन्सेप्ट आ गया ना ये ऑल फिजिबल कॉम्बिनेशन हो गया क्लियर लेकिन अगर तुम बोलो जो सर इस एफ पॉइंट में मुझे कॉम्बिनेशन एक लेना है तो एफ पॉइंट अफोर्डेबल नहीं होगा बिकॉज योर बजट डज नॉट परमिट यू टू टच पॉइंट एफ मतलब तुम्हारा बजट तुमको परमिट नहीं करेगा इस पॉइंट में क्लियर इस पॉइंट में दीज आर नॉन अफोर्डेबल और नॉन फिजिबल भी तुम बोल सकते हो क्लियर नॉन फिजिबल भी बोल सकते हो मतलब दिस ट्रायंगल में ऑल आर फिजिबल और बाहर लाइन के बाहर जितना पॉइंट होगा उसमें तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो नॉट अफोर्डेबल पॉइंट होगा मतलब नॉन फिजिबल पॉइंट क्लियर सो नॉन अफोर्डेबल और नॉन फिजिबल पॉइंट ऑलवेज लाइज outside the budget line but feasible point always lies on the budget line and as well as inside the budget line clear तो इसमें तुम्हारा दो कॉन्सेप्ट मिल गया है ना एक कॉन्सेप्ट मिल गया बजट लाइन क्या है बजट लाइन के साथ बजट इक्वेशन कॉन्सेप्ट आ गया बजट सेट किया है उसके साथ बजट कांस्टेंट कॉन्सेप्ट आ गया क्लियर और बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए तुमको दो चीज़ फॉलो करना है एक चीज़ क्या मैंने बोला m/py m/px मीन्स दीज आर टू इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन क्लियर सो दो चीज़ निकाल लो तो फाइनली दो चीज़ निकालने के बाद तुम दो पॉइंट वाई एक्सिस में मेजरमेंट ले लो उसके बाद तुम स्ट्रेट लाइन एक बना दो स्केल से क्लियर तो बजट लाइन हो जाएगा क्लियर सो फाइनली बजट लाइन रिप्रेजेंट्स various combinations of two goods which consumer can purchase against his given money income where cost is equal to income clear हो गया तो फाइनली बजट इक्वेशन से तुम बजट लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या निकाल सकते हो स्लोप मतलब बजट इक्वेशन जो है ना दिस इज बजट इक्वेशन जो है तुम्हारे हाथ में दिस इज इससे तुम स्लोप निकाल सकते हो किसका बजट लाइन का क्लियर तो स्लोप निकालने के लिए तुम एक चीज़ कर दो इधर y/py रख लो उधर तुम m है इसको उधर लेके चले जाओ राइट साइड में लेके गया उसके बाद तुम y को इधर रख दो m - x/px कर लो py को डिवाइड कर दो py क्लियर नेक्स्ट लाइन में तुम क्या करोगे y = m/py सेपरेट कर दो माइनस x/px/py इसको सेपरेट कर दो इसके बाद अगर तुम करोगे ना तो इसके बाद अगर देखा जाए तो y = m/py तुम लिख लो इधर प्लस दे दो माइनस दे दो px/py लिख लो
बाहर x लिख लो। ये जो फाइनल इक्वेशन तुम्हारे हाथ में आया ना, ये इक्वेशन में ये जो चीज़ निकला ना, प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, मतलब दो गुड्स का जो प्राइस का रेशियो इधर निकला ना, px by py, क्लियर? दिस px by py is nothing but the slope of budget line, clear? So this concept is nothing but the slope of budget line. अगर तुम x को अगर रखो ना, इधर मैंने y py रखा था ना, तुम ये टर्म्स भी रख सकते हो। अगर ये टर्म्स रखोगे तो चीज़ ऐसे निकलेगा, m by, और लिख देता हूँ, ओके, m by px प्लस ब्रैकेट माइनस py by px ब्रैकेट, इधर y आ जाएगा। मतलब अगर तुम y py लेफ्ट साइड में रखोगे तो ये चीज़ निकलेगा, अगर तुम x px को लेफ्ट साइड में रखोगे तो ये चीज़ निकलेगा। ये जो m by py इधर निकला और ये जो निकला ना, ये दो हो गया बजट लाइन का इंटरसेप्ट, क्लियर? और स्लोप हो गया px by py और py by px, दोनों को भी तुम स्लोप मान सकते हो, ओके? ये भी राइट, ये भी राइट, मतलब ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो। तो ओवरऑल ये दो चीज़ में आ गया, इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन, इंटरसेप्ट ऑफ द बजट लाइन, बिकॉज बजट लाइन का दो इंटरसेप्ट है। और स्लोप तुम बोल सकते हो px by py और py by px, क्लियर? तो फाइनली फ्रॉम दिस इक्वेशन वी से दिस इज द स्लोप ऑफ budget line. This is means what? Minus px by py means budget line का slope always negative. For that reason budget line slopes always downwards. So budget line का slope nothing but the price ratio of two goods, clear? तो budget line का slope निकालना कैसे, budget line और slope to তুমি কেনেকা ওলাবা, এইটো হে process ওলোৱাৰ, clear? আৰু ইয়াত এইখিনি যে slope সেই বস্তুটো কেনেকা budget line slope definitely we discuss in the next class, okay? তেতিয়াহ'লে আজি ক্লোজ কৰিছো, ধন্যবাদ।